All right. So good evening once again. Today we'll start with numbers. Write down the topic, numbers. 1 by 8. So when I say numbers, the first thing that I should understand in numbers is classification. So write down classification of numbers. Broadly, you see numbers are basically the biggest umbrella of numbers, I think, is complex numbers. पहले क्या था, जब कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं था ना 3+2i ऐसा कुछ, देन ओनली रियल नंबर्स थे. सो हमारा होराइजन थोड़ा कम हो गया था. सो व्हेन कॉम्प्लेक्स नंबर वाज इन्वेंटेड, so the biggest classification of number is actually called complex number. How does a complex number look like? It looks like a plus ib. जैसे कि 3 plus 2i. सर ये i क्या है? I actually stands for imaginary. Those who have studied complex numbers in class 11, those who took maths, will remember I is the imaginary. So I actually denotes iota. I का क्या है? Greek letter है. It is actually called iota. I का value होता है √-1. ठीक है? So आप लिख लो I is equals to √-1, but a complex number is denoted by a plus ib. अगर आप ध्यान से देखो, if a becomes equal to 0, you will be left with ib, and then this ib is called your imaginary number. So complex number can be classified as imaginary numbers, and if this b becomes equal to 0, you are left with only a, and this is called your real numbers. So how do I differentiate? अगर number में I है, then such a number is called complex imaginary number. और अगर number में I नहीं है, then such a number is called real number. Even a complex number has two parts. The first part जहाँ 4 है, सिर्फ 4 है, इस part को हम कहते हैं real part. और जहाँ I के साथ जो part है, इस part को हम कहेंगे imaginary part. I hope you understand. For competitive exams, very few questions are asked on imaginary numbers. However, little bit I will tell you on imaginary numbers. So first of all, let us finish this imaginary numbers, then I will get into real numbers. थोड़ा सा हम लोग imaginary numbers भी करेंगे. So write down in the next page imaginary numbers, और basically imaginary मतलब complex numbers के form में रहेगा तो क्या. So as I said, wherever you see I, such a number is called complex number or imaginary number. So suppose 3i, imaginary number, 2 minus 3i, imaginary number, and I actually is called iota. Actually हुआ क्या था, a mathematician was solving this equation x square plus 1 equal to 0. Then he was stuck. तो square root of -1 क्या लिखें, तो इसका नाम उन्होंने दे दिया I. ठीक है? So you will see that I का वैल्यू होता है √-1. If I do I square, it's actually √-1 का स्क्वायर, that's equal to -1. अगर I क्यूब की बात करें तो I क्यूब होता है I स्क्वायर इंटू I. I स्क्वायर का वैल्यू होता है -1 इंटू I is actually -I. Similarly, I power of 4 अगर आप करोगे तो आप लिख सकते हो I square into I square, that's equal to -1 into -1, basically it becomes 1. तो आप अगर ध्यान से देखो, I power of 1 is actually I power of 2 is -1, I power of 3 is -I power of 4 is +1. If I ask you, भाई what is the value of I power of 5, तो आप बोलोगे I power of 4 into I power of 1. I power of 4 is actually 1 multiplied by I, so your answer will be I. So higher power you have reduced to lower powers of I. Also, if somebody is asking you I power of 8, you will say I power of 4 multiplied by I power of 4. I power of 4 is 1 multiplied by 1, you will get 1. Basically, a very important thing that I का जो power अगर 4 का multiple है,
कोई भी मल्टीपल है तो इसका वैल्यू होता है 1. नोट करो. Write okay if you have understood this much. If any part you want to repeat, let me know. So when you write okay, it means you have copied and you have understood. Everybody should reply. And right, चलो, so everybody is writing okay, so this is very much clear. जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं I power of 2004 plus I power of 2005 plus I power of 2006 plus I power of 2007, what is the value? चलो निकालो जल्दी. First question. All right, so any answer? I think I can take out I power of 2004 common. It will be 1 plus I square plus I cube. Right, Mohina? Shreya, you there in the class? I power of 2004. Yes, sir. 2000, yes, 2004 is a multiple of 4. This is basically 1. And this is 1. This is I. I square का value होता है -1 and I cube is again -I. अगर आप देखो सॉल्व करोगे ये वाला कट जाएगा and the value is actually 0. So a very interesting observation है जी यहाँ पे, जरा नोट कर लो. अगर देखो पावर कंसेक्यूटिव हो और आप ऐड कर रहे हो 4 पावर 1, 2, 3, 4, तो हमेशा ही रिजल्ट बड़ा सा 0 होगा. Is this clear, Sakshi? So what do I mean to say? Suppose I power of 1997 plus I power of 1998 plus I power of 1999 plus I power of 2000, तो आंख बंद करके आंसर क्या लिखेंगे? 0. तो आप नोट में लिखो कि अगर 4 consecutive powers, sum of 4 consecutive powers of I, the value will be 0. प्रदीप, आई रिपीट, देखो एक्चुअली हमने सॉल्व किया है तो 0 आया, मगर मैं स्मार्टली ऐसे सोच सकता हूं कि I का पावर अगर कंसेक्यूटिव है, देख रहे हो 97, 98, 99, 2000, तो इसका 4 आइटम जब रहेगा तो हमेशा ही रिजल्ट 0 होगा. राइट प्रदीप? वेरी गुड. पीपल, जैसे कि मान लो सपोज आई से I पावर ऑफ 23 प्लस I पावर ऑफ 24 प्लस I पावर ऑफ 25 डॉट 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 टिल I पावर ऑफ 100 है, ठीक है, समथिंग लाइक दिस. इफ दे विल आस्क यू, देन आप इसको बहुत ही आसानी से बना सकते हो कि अगर 4-4 का ब्लॉक होगा तो 4-4 का जो ब्लॉक होगा उसका वैल्यू 0 होगा. तो 23 से लेकर के 100 तक कितने टर्म्स हैं? सो 100 माइनस 23 प्लस 1, इतने टर्म्स है, राइट? सो 77 प्लस 1, 78 टर्म्स हैं. समझ में आ रहा है? तो 78 टर्म्स हैं, तो पहले 76 टर्म्स जो 4 के मल्टीपल्स हैं, मतलब इतने टर्म्स को 4 का ब्लॉक बनाएगा, अब बच जाएगा लास्ट का 77th टर्म एंड 78th टर्म, करेक्ट? तो 76 टर्म का वैल्यू हो जाएगा 0 एंड 77th टर्म आई थिंक 2 टर्म पीछे, y टू द पावर ऑफ 99 एंड द लास्ट वन इज I पावर ऑफ 100. तो ये 0 प्लस I power of 99 is I power of 96 into I cube, and I power of 100 is again 1. I power of 96 is 1, I cube is minus I. So minus I plus 1. So your answer is minus I plus 1.
एनीबडी, एनी डाउट, लेट मी नो। ये मैंने क्या किया, 23 से लेकर के 2300 तक कितने नंबर्स होंगे इंक्लूडिंग 23? 77 प्लस 1 एक्चुअली, राइट। जैसे कि 1 से लेकर के 100 कितने नंबर्स होते हैं? 100 नंबर कैसे आता है? फाइनल माइनस इनिशियल, 99 प्लस 1, 100 नंबर्स। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे ये चीज। ऋतुमन वांट्स टू रिपीट। सी आई कैन नॉट सॉल्व, हर किसी को सॉल्व हम नहीं करेंगे। हम देख रहे हैं कि कंसेक्यूटिव पावर है, तो 23 से लेकर के 100 है, तो कितने टर्म्स होंगे? 78 टर्म्स होंगे। तो पहला 76 टर्म्स 4 का ब्लॉक बनाएगा, राइट, क्योंकि 76 इज डिविजिबल बाय 4। उसके बाद 77th टर्म, 78th टर्म, तो 76 का जो 4 का ब्लॉक होगा सबका वैल्यू 0 हो जाएगा, 0 प्लस 0 प्लस 0, और ये आई पावर ऑफ 99 प्लस आई पावर ऑफ 100। तन्मत्र नॉट क्लियर? एक्चुअली अभी आपने क्या लिखा कि सम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव पावर्स अगर आप i का ऐड करते हो तो वैल्यू होता है 0। तो मैं 4 का पेयर अगर बनाऊंगा तो 76 टर्म्स में 19 पेयर्स बनेंगे ना जी। 19 इंटू 4 76 टर्म्स का वैल्यू हो जाएगा 0। 77th टर्म कौन सा होगा? i पावर ऑफ 99, एंड 78th टर्म कौन सा होगा? i पावर ऑफ 100। So I power of 99 is I power of 96 into I cube. I power of 96 is again 4 is divisible, 96 is divisible by 4. तो ये होता है 1 into I cube. I cube का वैल्यू कितना होता है? I square into I minus I होता है. So I have written minus I plus 1. So this is my final result. Okay. चल. A very tricky question. People, there is a number 3 plus 4i is a complex number. Another number is 3 minus 4i. This number is suppose z1, this number is suppose z2. Which number? Z1 is greater than z2? Option 1. Option 2, z1 is less than z2. Z1 is equal to z2. Can't say. ये नंबर का नाम है z1, ये नंबर का नाम है z2. चलो ऑप्शन में टिक करो. अंबालिका, टेल मी. देवप्रिया, आर्यामा. Oh, nobody. Okay. So understand that. Deepak, देखो इधर. Z1 will be greater than Z2. Yes, sir. Okay, so please write that. Please write in the chat box. Anyway, you see Z1 and Z2 are two complex numbers. देखो complex का मतलब क्या होता है? Imaginary. अगर नंबर इमेजिनरी है यानी नंबर एग्जिस्ट नहीं करता, आप ऐसे समझो, तो इसका कंपैरिजन डिफाइंड नहीं होता. मतलब कौन किससे बड़ा है, कौन किससे छोटा है, हम ये चीज डिफाइन नहीं करते हैं. सो हियर आई कैन नॉट कंपेयर कि ये बड़ा होगा कि छोटा होगा कि बराबर होगा. सो माय आंसर विल बी कांट से. सो नोट में लिखो, कंपैरिजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स और इमेजिनरी नंबर्स इज नॉट अलाउड. So you cannot say कि Z1 is greater than Z2, क्योंकि ऐसे याद रखो कि एक्चुअली एक Z1 जो होता है ना, एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है. तो एक पॉइंट दूसरे पॉइंट से कितना बड़ा है कितना छोटा है कहाँ पता चलेगा? ठीक है. सो कंपैरिजन, कॉम्प मतलब कंपैरिजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स इज नॉट अलाउड. ठीक है, नोट में लिखो. दिस मच क्लियर? राइट, क्लियर, नॉट क्लियर? हाँ, इसके मैग्नीट्यूड को आप कंपेयर कर सकते हो. आई एम नॉट गेटिंग इनटू ऑल दोस थिंग्स नाउ, बट दिस मच इज एनफ.
as a number you cannot compare. Chalo, let us get into real numbers because this is of our importance. इसका काम है हमें जी, real numbers हमें काम है. So when I talk about real numbers, what is the biggest classification? I think you have heard rational numbers. लिखो, note करेंगे जी. And the other one you have heard irrational numbers. Very, very important. A lot of small questions can be asked from these two. In schools you have studied a number which can be represented in the form of p by q, जहाँ की q का वैल्यू 0 नहीं है. Such a number is called rational number. जो नंबर p by q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, q not equal to 0, obviously नीचे 0 तो नहीं होता है. Such a number is said to be rational number, and the one which cannot be written is called irrational number. Examples of rational number 3. क्यों? क्योंकि 3 को 3 by 1 लिख सकते हैं. क्यों देवप्रिय? 4 by 7 फ्रैक्शन हो, 0.3 डेसिमल हो, 3 by 10 लिख सकते हो, p by q के फॉर्म में लिख सकते हो. तो ये सारे रैशनल नंबर्स हैं. जैसे कि 1.3 बार, ये क्या होता है जी? बार मतलब 1.33333 ऐसे बचपन में पढ़े थे आप. देन सच अ नंबर कैसा डेसिमल है जी? नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट नहीं कर सकते, देख रहे हो, डॉट डॉट, एंड रेकरिंग. तन्मत्या देखो, ये नॉन टर्मिनेट करेगा, कभी टर्मिनेट नहीं करेगा, और ये रेकर कर रहा है, 3 रेकर कर रहा है. तो ऐसे नंबर्स को हम रैशनल कहते हैं. सर क्यों कहते हैं? क्योंकि इसको आप p by q के फॉर्म में लिख सकते हो. सर कैसे लिख सकते हैं? नेक्स्ट पढ़ेंगे. बट एज ऑफ नाउ understand that non-terminating and recurring decimals are actually rational numbers. सर ये जो √2 होता है सर, जिसको हम लोग क्लास 9 में या 8 में पढ़े थे, सर्ड्स बोलते थे. सर्ड्स, जहां जहां √2 आता था, √3, √2 minus √3 ऐसे करके नंबर्स जो होते थे. तो ऑल दीज नंबर्स आर कॉल्ड इरैशनल नंबर. जैसे कि ई, एप्सिलॉन, जैसे कि 2.31781 कुछ भी ऐसे चलता था. तो ई एक कांस्टेंट है. जैसे कि पाई, पाई इज अ कांस्टेंट, इसका वैल्यू होता है 3.1428571. पता नहीं क्या क्या चलेगा. तो हम कहते हैं कि पाई इज एन इरैशनल नंबर. ई एज अ कांस्टेंट, इरैशनल नंबर. सो सच नंबर्स आर कॉल्ड इरैशनल नंबर्स. ई का स्क्वायर इरैशनल एंड स्टफ्स लाइक दैट. सर मुझे नहीं समझ में आया सर, जरा ध्यान से समझाओ. तन्मत्रा मुझे एक बात बताओ, व्हाट इज द सेकंड नंबर आफ्टर द डेसिमल इन दिस क्वेश्चन? Definitely 3. What is the 8th number? That's also 3. What is the 12th number? That's also 3. Right? Therefore it is called rational because it is making sense. English में आपने पढ़ा था ना, rational का मतलब क्या होता है? Something that makes sense to you. I say Aryama speaks rationally. So when she speaks sensibly. But suppose I tell you what is the third number after decimal? You will say 1, 2, 3, 7. What is the 9th number? Sir, don't know. What is the 12th number? Sir, I can't say. मतलब it is not making sense. The way this is made is not making sense. Such a number is called irrational, less sensible. जैसे कि √2 का वैल्यू 1.414 होता है. नहीं, अरे अंबालिका, और आगे का पता नहीं थी कैसे डेसिमल्स हैं. एक्चुअली नॉन टर्मिनेटिंग, यहां भी नॉन टर्मिनेटिंग, यहां भी नॉन टर्मिनेटिंग, मगर ये है नॉन रेकरिंग. क्योंकि डेसिमल के बाद जो पोर्शन वो रेकर नहीं कर रहा है, एक पैटर्न में रिपीट नहीं कर रहा है. सो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग डेसिमल्स आर कॉल्ड इरैशनल नंबर्स. नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग डेसिमल्स आर कॉल्ड रैशनल नंबर्स. राइट? अंडरस्टूड सो फार? I think I have discussed something that you guys have studied in your class 5, 6 or something. Wonderful.
शुभांगिनी ऑल्सो अंडरस्टूड, अंबालिका, दीपक नहीं समझा क्या, कहाँ गया, प्रदीप, मेहुल, अच्छा चलो जी। सो व्हेन यू से अंडरस्टूड यू हैव आल्सो कॉपीड, राइट। एक क्वेश्चन बनाएंगे फटाफट, गिविंग यू 1 मिनट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट रैशनल नंबर्स, जल्दी बनाओ, एक बेसिक क्वेश्चन है। ओके प्रदीप थोड़ा थोड़ा, ओके सो बहुत पुरानी बातें आपको याद आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं, दैट्स द कंसर्न एक्चुअली। So all these things already studied in schools. So 1 minute for this question. अभी आपको समझ में आ जाएगा। इसके ऊपर लिखोगे सिर्फ R लिखो या तो IR लिखो, समझ रहे हो। नॉट रैशनल मतलब रैशनल है कि इरेशनल है, R लिख सकते हो, IR लिख सकते हो। नॉट रैशनल का मतलब होता है इरेशनल, पूछ रहा है कौन कौन सा इरेशनल है। सर एक एक करके बताना कौन सा रैशनल है, कौन सा नॉन रैशनल है, इरेशनल है। हाँ आप अपना आंसर सिर्फ लिखो, क्वेश्चन मत लिखो। टाइम अप हो गया यार, चलो। आई थिंक द फर्स्ट वन इट इज रैशनल, 22/7 p/q के फॉर्म में। सेकेंड वन दिस इज अगेन रैशनल। सर 3.14 तो सर पाई का वैल्यू होता है यार, पाई का वैल्यू होता है तो क्या हुआ, मैं 3.14 है सिर्फ, तो मैं 314 डिवाइडेड बाय 100 तो लिख ही सकता हूँ, p/q के फॉर्म में लिख दिया तो रैशनल होगा। e क्या है, इरैशनल। पाई क्या है, इरैशनल। मैच करो जी, 2 to the power of 9875, तो ये एक डेफिनेट थोड़ा बड़ा नंबर होगा, मगर -45 से करोगे तो रैशनल ही होगा। √2 इरैशनल, 1.23232323, देख रहे हो ये कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग है, तो रैशनल होगा। अब देखो जी ये वाला 3.125629 कोई पैटर्न ही फॉलो नहीं कर रहा यार इसके बाद वाला, देयरफॉर दिस इज irrational. Yes, E. Pradeep, you're telling E. E वाला rational होगा, 2 to the power of 9875 minus 45। क्या दिक्कत है, बड़ा नंबर आएगा, भले ही आप नहीं लिख पाओ, कंप्यूटर लिख देगा ना। तो बड़ा सा नंबर -45, सो ये तो रैशनल ही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये देखो 4.1515 15154 5 1559 15154 8, ये कोई पैटर्न चल रहा है क्या, 15154 5 1515459। I don't think there is any pattern, again this is irrational। प्रदीप कैसे, क्या ये तो रैशनल ही है, बिकॉज इसको आप सॉल्व करके एक प्रॉपर नंबर जैसा लिख सकते हो, ये इस टाइप का डेसिमल टाइप का नहीं आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग टाइप का नहीं आएगा, इसी कारण ये रैशनल है। ये वाला देखो रैशनल, ये वाला देखो ये तो परफेक्ट डेसिमल है, ये है 2.8131313, तो दिस वन कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p/q, this by this can also be represented in the form of p/q, that's r, right? All correct, 5 correct, 2 correct, जल्दी लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़ा स्पीड अप करेंगे जी। वेरी गुड, 9 करेक्ट। सो दोज जिसका कुछ रॉन्ग हुआ हो, आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको। चलो एक क्वेश्चन छोटा सा बनाओ रैशनल इरेशनल पे। See here, the product of two real numbers is rational। तन्मत्रा नहीं बना रहे क्या? The product of two real numbers is rational. If one is rational, then the other number is what? जल्दी
30 seconds only. All right, your time is up. So there are two numbers A and B. The product of two numbers is rational. मान लो C आया, तो C क्या बोल रहा है? Rational है. तो one number is rational, मतलब ये वाला बोल रहा है मान लो एक rational है. तो what can you say about B? B is also rational. B is irrational or B is a natural number? None of these. All right. अगर आप कहते हो B रैशनल है तो मैं ना A को रैशनल माना हो तो A को मैं 0 मान लेता हूं. 0 into root 2 is equal to 0. रैशनल into irrational is equal to rational. अरे तो B क्या हो गया? irrational हो गया. और अगर मैं इसको 0 नहीं मानता हूं 5 तो इंटू डेफिनेटली मुझे कोई रैशनल नंबर ही चाहिए, तब मान लो 35 आएगा. तो B यहां पर रैशनल हो गया. तो कभी B रैशनल हो सकता है, कभी वो इरेशनल भी हो सकता है, बिकॉज 0 हम नहीं लेंगे तो गलती कर सकते हैं. सो दिस इज नॉट माय आंसर. आंसर इज दिस वन. नन ऑफ दीज. यस मोहिना, क्योंकि अगर ये जो रैशनल नंबर है अगर वो 0 हो गया तो दूसरा वाला इरेशनल भी तो हो सकता है. राइट, अंडरस्टूड. फटाफट लिखो जी. इस स्पीड में अगर हम लोग चलेंगे तो 16 क्लासेस लगेंगे इस टॉपिक को कंप्लीट होने में, नंबर्स. सो यू नीड टू बी लिटिल फास्ट एंड आस्क मी टू रिपीट. डोंट टेक एनीथिंग फॉर ग्रांटेड. ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ. नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, सपोज आई से x इज इक्वल्स टू 0.3 बार है, तो आई एम गोइंग टू कन्वर्ट दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड recurring decimals into fraction. ये कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस आपके रहते हैं. So I think you guys can convert this one. कैसे करते थे जी स्कूल में? x is equals to 0.33333. अभी एक नंबर है आफ्टर डेसिमल जिसके ऊपर बार है, तो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10. So this will become 3.33333. इसको फर्स्ट बोलते थे, इसको सेकंड बोलते थे स्कूल्स में, याद है? डेसिमल के बाद और डेसिमल के बाद सेम हो गया तो आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हो 2 - 1. सॉरी, 2 - 1. तो आई थिंक 9x इज इक्वल्स टू 3.00. एक्चुअली 3 डिवाइडेड बाय 9. तो जो x ऐसा था उसको मैंने a बाय b के फॉर्म में, p बाई क्यू के फॉर्म में लिख दिया. इसी कारण हम इसको रैशनल कहते हैं. याद आया? सपोज x is 1.3 bar. They will ask you to write this one in fraction. Write down. जल्दी लिखो. x is 1.3 bar. ये कितना फ्रैक्शन के फॉर्म में है? Easy. चलो, let me take it in the next page. x is equals to 1.3 bar. इसको कैसे लिखेंगे? 1.333 डॉट डॉट डॉट. तो इस जो रिपीट कर रहा था इसको पहले ले आओ, मतलब 10 से मल्टीप्लाई कर लो, ये हो जाएगा 13.333 डॉट डॉट. इसको इससे माइनस करो, ये 9x आ जाएगा. 13 - 1 12.0. x is 12 by 9. So this is suppose 1, this is suppose 2. So you are actually doing 2 - 1. X is 12 by 9. That's correct. Others understand? इसका आप बगल में मैं ब्राउन कलर से लिख रहा हूं,
अंबालिका शॉर्टकट देखो, शॉर्टकट ध्यान रखो इसका। क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू 1.3 बार है ना, तो डायरेक्ट कैसे लिखेंगे, देखो x इज इक्वल्स टू, ये जितना नंबर आपको दिख रहा है बार हटा करके पूरा लिख दो 13, शॉर्टकट देखना ठीक है, माइनस किसके सिर पे बार नहीं है 1, तो माइनस कर दो 1, डिवाइडेड बाय कितने नंबर है जिसके सिर पे बार है, एक नंबर है, ओनली वन डिजिट इज हैविंग बार, सो दैट विल हैव जस्ट 19, सो आंसर इज 12/9। सर नहीं समझ में आया सर, लेट्स टेक वन मोर। x इज इक्वल्स टू 13.26 बार, तो x का वैल्यू क्या होगा पता है, 1326 माइनस, ध्यान से देखो जी, 1326 माइनस किसके सिर पे बार नहीं है 13, डिवाइडेड बाय कितने नंबर हैं जिसके सिर पे बार है, 2 नंबर, देयरफॉर 2 9s, इस डायरेक्ट लिख रहे हैं हम, सो 1313 डिवाइडेड बाय 99, इसका रिजल्ट होगा। राइट, गॉट इट, दोज हु अंडरस्टूड, जल्दी लिखो, आस्क मी टू रिपीट। Those who understood the shortcut, long cut, school 5, class 4, अपने भाई से पूछ लेना जो क्लास 5 में है, शॉर्टकट समझ में आया कि नहीं। सर आप ये सब क्यों पढ़ा रहे हो सर, ये जो क्लास 5 का क्लास, अरे कितने लोग तो ये भी भूल गए हैं, तो यही तो प्रॉब्लम है। चलो एक और क्वेश्चन देखो, x इज इक्वल्स टू 1.216 बार, ध्यान से समझो जी, यहां पे आफ्टर डेसिमल 2 के ऊपर बार नहीं है, जैसे कि अगर मैं क्वेश्चन लिखूं 1.216 पूरे पर अगर बार दे दूं, इसका आंसर तो हो जाएगा 1216 माइनस ये वाला 1, क्योंकि इसके ऊपर बार नहीं है। देखो जितने नंबर हैं जिसके सिर पे बार है, जैसे कि 1 2 3 नंबर है, तो जितने नंबर के सिर पे बार है उतना नंबर ऑफ 9s आएगा नीचे, सो 1215 डिवाइडेड बाय 999, ये तो इजी है। बट इसमें हम क्या करेंगे, चलो हम इसको पहले स्कूल मेथड से बनाते हैं। 1.2 सिर्फ 16 रिपीट करेगा, नहीं श्रेया, सिर्फ 16 रिपीट करेगा, क्योंकि 2 पे बार नहीं है। इसको हम कहते हैं रेकरिंग पार्ट, इसको हम कहते हैं नॉन रेकरिंग पार्ट। अब हमें स्कूल में टीचर ने बताया था इसको कहते हैं नॉन रेकरिंग पार्ट और इसको हम कहते हैं रेकरिंग पार्ट। तो पहले नॉन रेकरिंग पार्ट को लेफ्ट में ले आओ, मतलब 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा 12.161616 डॉट डॉट डॉट। मगर अभी भी मुझे खुशी नहीं हुई, बिकॉज 16 वाला जो पार्ट है जो रेकर कर रहा है उसको मुझे चाहिए बिफोर द डेसिमल। तो अब मैं क्या करूंगा, 2 डिजिट है ना, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 100 से करेंगे तो ये 1000 हो जाएगा ना, और ये हो जाएगा 1216.161616 डॉट डॉट डॉट। सर क्या बड़ा काम किया आपने, मैंने ये किया कि आफ्टर डेसिमल मैंने इस पार्ट को सेम कर दिया। यही मेरा टारगेट रहता है कि आफ्टर डेसिमल पार्ट को सेम कर देना है। अब मैं इसका नाम दे दो 1, इसका नाम 2, इसका नाम 3। अब मैं 3 माइनस 2 कर सकता हूं, तो 1000 माइनस 10 हो जाएगा 990x, और ये हो जाएगा 1216.1616, वो तो कट जाएगा नहीं जी, माइनस 12। तो आपका x का वैल्यू क्या हो जाएगा 1204, 16 माइनस 12 4 by 990। दिस इज द रिजल्ट। Right, fine, if you have understood the school method. I'll tell you the shortcut also. Rituman, I repeat, check it out. Let me change the color. I said here this 2 is the non-repeating part and this 16 is the recurring part, right? तो इसको करेंगे क्या, पहले non-repeating को before the decimal, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसमें ये 1616 भी रिपीट कर रहा है, इसको बिफोर द डेसिमल लाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से करेंगे तो ये 1000, ये 10, तो 990x हो जाएगा। एंड दिस माइनस दिस करोगे 1216 माइनस 12 विल बी 1204।
by 990. This is the answer. So those who are writing fine, only 1, 2, 3, 4 people understands, others not clear. I'll tell you the shortcut also, but please ये स्कूल मेथड भी याद कर लो, प्रैक्टिस करो. एक x का वैल्यू 14.31. हाँ जी बोलो. ये 1000x से यहाँ पर थोड़ा समझाइए ना. एक मिनट थोड़ा रिपीट कीजिए वहाँ से. कर रहे एक मिनट. ये देखो इस क्वेश्चन में अदर्स कॉपी करो इसको p/q के फॉर्म में लिखो. राइट दिस वन इन द फॉर्म ऑफ p/q. 3164. 31 के ऊपर बार नहीं है, 64 के ऊपर बार है. मैं प्रदीप को समझा रहा हूं, तब तक आप लोग बनाओ. कॉपीड लिखो, कॉपीड. I'll change the slide. इसको करो आप लोग. चल. अंबालिका नॉट राइटिंग एनीथिंग, नॉट क्लियर. लिखो जल्दी. यस. चलो प्रदीप क्या बोल रहे, फिर से बोलो. यहाँ जो 1000x ये पार्ट से मैं थोड़ा समझाइए. हाँ, मैंने इसको 1000x कहाँ से लाया. एक्चुअली देखो करते क्या है, हम पहले नॉन टर्मिनेटिंग को बिफोर डेसिमल ले आते हैं. तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तब नहीं वाला आएगा, क्योंकि 2 है, सिर्फ एक ही डिजिट है, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दिया. अब 16 दो डिजिट है. अगर 16 को बिफोर डेसिमल लाना है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको. तो दिस विल बी 1000. ये वाला आ गया. तो मेरा काम यही था कि आफ्टर द डेसिमल सेम हो जाए. इसमें आफ्टर द डेसिमल सेम नहीं हुआ. देखो यहाँ पर 1.2 है, यहाँ पे 1, यहाँ पर 0.1616 है, तो सेम नहीं है, इसलिए मैंने सेम कर दिया. आफ्टर मेकिंग इट सेम आई एम सब्ट्रैक्टिंग 3 and 2. ये वाला पॉइंट तो कट माइनस हो जाएगा ना. जैसे कि 4.4 माइनस 2.4 क्या होगा, 2 ही ना होगा, 2.0 होगा ना. हाँ, अब इसको माइनस किए तो ये आया, और इसको माइनस किए तो ये आया. x का वैल्यू डिवाइडेड बाय हो गया. हाँ, 1216 माइनस 12. ठीक है. या अदर्स फिनिश्ड बाय दिस टाइम. प्रदीप देखो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पर ध्यान से देखो. ये ब्लैक कलर नहीं कर रहा हूँ, चेंज कर दे रहा हूँ. ओके, साक्षी हैज गॉट इट. नाउ सी हियर 14.31 64 64 64 ऐसे रिपीट करेगा. देखो पहले 31 है जो नॉन टर्मिनेटिंग है, तो पहले 100 से मल्टीप्लाई करेंगे. तो 1431.64 64 64 डॉट डॉट डॉट. मगर अब 64 को भी तो चाहिए उधर लेफ्ट में, क्योंकि ये वाला और ये वाला बराबर नहीं हुआ. 64 को करेंगे तो अगेन 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 0 हो जाएगा. तो ये जाएगा 143164.64 64 डॉट डॉट डॉट. इस ये 3 ये 2 एंड ये 1. सो 2 माइनस 1 इसमें माइनस करो तो क्या होगा. आई थिंक 10,000 माइनस 100 तो क्या हो जाएगा 9,900x. दैट्स इक्वल टू 141733. x का वैल्यू हो जाएगा 141733 डिवाइडेड बाय 9900. ठीक है. आई एम श्योर मेनी हैव गॉट इट. दैट्स वंडरफुल. इसका शॉर्टकट देखेंगे जी. बगल में लिखो शॉर्टकट. शॉर्टकट क्या है, उसमें मैंने क्या कहा था, जो पूरा नंबर है पहले कॉपी कर लो. तो 143164 को कॉपी कर लो. ठीक है, ध्यान से देखना. माइनस जिसके सिर पे बार नहीं है. रूपांकर ध्यान से इधर देखना. जिसके सिर पे बार नहीं है, सो 1431 के सिर पे बार नहीं है तो माइनस. डिवाइडेड बाय कितने नाइन्स मैंने कहा था, कितने नाइन्स, जितने डिजिट के सिर पे बार है. 2 डिजिट के सिर पे बार है तो 2 9 आएगा. अब देखो डेसिमल के बाद कितने ऐसे डिजिट है जिसके सिर पे बार नहीं है.
डेसिमल के बाद 2 डिजिट, इसी कारण 2 0 आता है। आंसर सेम है। Those who understood in one line, right, got it. For others, हाँ जी, एक बार बोलिए सर, क्या बोले, जिसके ऊपर बार है आप उसके लिए 99 बिट है, 2 बार है इसलिए। और जो डेसिमल के बाद जितने डिजिट ऐसे हैं जिसके ऊपर बार नहीं है उसके लिए 0 0 बिट है। 2 डिजिट है तो 2 0 बिट है। ओके ओके, समझ गया। अभी प्रैक्टिस करेंगे तो सारा क्लियर हो जाएगा। एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। चलो लास्ट क्वेश्चन। x इज इक्वल्स टू 31.1476, सिर्फ 6 के ऊपर बार है। डायरेक्ट आंसर क्या होगा, मैं लिख रहा हूं, देखो ध्यान से। x होगा 311476 माइनस 31147 डिवाइडेड बाय, एक नंबर के ऊपर बार है तो 1 9 और 1 2 3 नंबर है डेसिमल के बाद जिस पर बार नहीं है तो उतने सारे जीरोस। हो गया काम। जल्दी बताओ। डन। x इज 14.26। आंसर जल्दी जल्दी करो। x इज 0.1486। Shubhangini, are you able to follow? Yes, I am sure you are done. मैच करेंगे जी, मैच कर लो। 14, let me take red pen, 14261 minus 142 divided by 990, ये हो जाएगा 1486। एक्चुअली होगा 01486 माइनस 014 which is same as 14 divided by 29 और 20। फटाफट लिखो सेम, जिसका सेम है लिखो सेम, अदरवाइज लिखो सॉरी। जल्दी जल्दी, सेम आया तो लिखो सेम, अदरवाइज लिखो सॉरी। ठीक है, चल। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, जस्ट 1 मिनट। जल्दी जल्दी बनाओ, एकदम धीरे धीरे चलेंगे बच्चों की तरह। सारे एक एक चीज को खोज खोज के बनाना है। Time is up. I'm not waiting for anybody. I'm sure many have done it. Write done and then match the answers. पूरा मैं नहीं करूंगा कैलकुलेशन, सिर्फ रिजल्ट लिख दूंगा। This one is 272 minus 2 divided by 990 minus 1363 minus 13 divided by 9900। अब
मैं नहीं सॉल्व कर रहा. टेल मी द आंसर. दिस वन आउट ऑफ दीज 4 ऑप्शंस. क्या हुआ? ए का जो आपके वो 990 आएगा ना, एक तो 99 तो खाली नहीं आएगा. ये वाला ए ये वाला 9910. 3 का ए. हाँ सिर्फ 99 आएगा यहाँ पे. एक 0 होना चाहिए ना, ये जो कि इसमें नहीं है ना. डेसिमल के बाद कितने ऐसे नंबर है जिसके सिर पे बार नहीं है? कहाँ कोई नंबर है? नहीं. अगर वो अच्छा नहीं रहेगा तो वो एक वाला नहीं पकड़ेंगे. हाँ, सॉरी मैंने वो एक पकड़. एक्चुअली क्या है ना, 0 इसी कारण आता है कि डेसिमल के पास कितने नंबर के सिर पे बार नहीं है. आप एक्चुअली करते हो जो स्कूल्स में ना, वो यही सब करते हो, बट दैट हमारे पास उतना टाइम नहीं रहता है तो हम लोग ऐसे करते हैं. इसको मोहिना इज टेलिंग डी एंड अदर्स वांट मी टू सॉल्व. नो वन एल्स. कोई तो और डी बोलो. दीपक मेरे को दाल सब्जी ला करके रख दिया, सर आप पका के खा लो. ऐसे नहीं चलेगा यार. अब मुझे पूरा बताओ. Oh, nobody is getting. सॉल्व नहीं हो रहा है. दीपांशु व्हाट्सएप. साक्षी 2 मिनट लग गया यार ये 2 क्वेश्चन बनाने में. आपके कॉम्पिटिटर्स 30 सेकेंड्स में बना के फेंक देंगे ये सब. क्या कर रहे हैं आप लोग, हम समझ में नहीं आ रहा है. सो शी इज ऑल्सो गेटिंग डी एंड सम आर स्टिल कैलकुलेटिंग. मतलब उनको 5 मिनट चाहिए ऐसे क्वेश्चन के लिए. 5 मिनट्स दे दो सर. सर मुझे ना 15 मिनट दे दो, मैं बना दूंगा. कभी कभी गुस्सा आता है. डोंट डू दिस वे. इट्स ऑलमोस्ट 3 to 4 months you are studying with me, right? So this is one very basic thing. जब मैं टाइम में पढ़ाता था तब तो ये सब हम लोग कोचिंग में डिस्कस नहीं करते हैं. ये सब बोल देते कि आप घर पे पढ़ो. बट यू नो फॉर यू पीपल आई एम डूइंग ऑल दीज थिंग्स. सो प्लीज कोऑपरेट एंड स्पीड करके सॉल्व करो. कम से कम बैठे बैठे कॉपी पेस्ट मत करो. ऑल राइट. सो if you see, we have not done very substantial things so far. We have just seen complex numbers. They are actually real and imaginary. In imaginary I said not very important, but basic things aapko aana chahiye. When I talked about real numbers, I said rational irrational kya hai, and it's very important. So I made you guys practice all these stuffs, how to convert from this to this. Some non-CAT exams or other government exams and all, when you guys will write, you will have questions from all these things. ठीक है. But CAT and all will not ask. But थोड़ा तो आना ही चाहिए. You cannot say कि नहीं आएगा, because data sufficiency and all में आ सकता है. Basic चीज है काफी. ठीक है. And stuffs like that. Now let us get into the latter part of rational numbers. लिखो. Rational numbers are further classified as, आपके पास डेसिमल्स के फॉर्म में हो सकता है. वो कॉपी करेंगे जी. some people don't copy. डेसिमल्स के फॉर्म में हो सकता है, फ्रैक्शन के फॉर्म में हो सकता है, और इट कुड बी इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर्स. सर डेसिमल सर जैसे कि 1.3 जहां जहां पॉइंट होगा. सर 4 एक डेसिमल नंबर है क्या? एक्चुअली 4 को 4.0 लिख सकते हैं, बट क्या मतलब है? आई इंसर्ट इट इन इंटीजर्स कैटेगरी. फ्रैक्शन 3/4, 7/8, all these are fractions, right? And integers, you know, how does integer look like? Integers number line में अगर आप देखो, so all these numbers are called integers. बीच वाले numbers नहीं, ये है real number line. तन्मात्रा ध्यान देना. रियल नंबर लाइन का मतलब ये जो ग्रीन कलर से मैंने शेड कर दिया, एवरीथिंग इज कॉल्ड रियल नंबर्स. बट स्पेसिफिकली this yellow colors are called integers, right? So when I say integers, I actually
I'm not sure whether I am talking about positive integer or negative integer or non-negative integer and stuffs like that. अगर integer का ये line देखो तो all these are positive, negative integers and all. How do I classify? I have told you guys कि जैसे कि 1, 2, 3, all these numbers are called positive integers in red color. Please understand. Next, -1, -2, -3, all these numbers in black color are called negative integers. So zero क्या है? Anybody write down in the chat. What is zero? Positive ki negative? Non-negative. All right. Now zero has a problem. If 0 is included in the right side, then this 0 is called non-negative integer. इसका अपना कुछ अस्तित्व नहीं है. Please understand. If I include 0 to the right side, then this 0 is called non-negative. And if I include this 0 in the left side, then this same 0 is called non-positive integer. Right, got it. Copy karo. And very, very important, a lot of mistakes people will do, those whose basics are not clear. सर आप तो ऐसे पढ़ा रहे हो सर कि मैं क्लास 4 में हूँ 5 में हूँ, तो आप जब क्वेश्चन बना नहीं पाते हो वो इसलिए नहीं बना पाते क्योंकि आप क्लास 4 5 की सारी चीजें भूल गए हो, या तो आपका स्पीड इसलिए नहीं आता है बिकॉज बहुत सारी चीजें आप भूल गए हो. So today's class is actually very fundamental class. ठीक है? Allow me to give you one question on this positive integers, negative integer and all, so that you really understand कि ये एक important topic है. I'll expose you to one of the previous CAT questions. Let's take this question. Try this. I'm giving you 1 minute time. Done? All right. So let us see how exactly we can do this. If n is an integer, simply an integer, so negative, positive, 0 also, but by n है तो n 0 तो नहीं होगा. By n है ना, क्योंकि नीचे by के नीचे 0 अलाउड नहीं होता है. How many values of n will give an integral value of 16n square plus 7n plus 6 divided by n? ये एक इंटीजर होना चाहिए. इंटीजर इज जनरली डिनोटेड बाय z. ओके, z लिखते हैं. तो अगर मैं इसको n से डिवाइड कर दूं, आई थिंक ये 16n plus 7 plus 6 by n, इसका वैल्यू z होना है.
तो n के कितने वैल्यूज लेंगे? तो भाई एक बात बताओ, ये वाला पोर्शन तो n का कोई भी वैल्यू पे इंटीजर ही होगा। अब ये वाला पोर्शन को मुझे इंटीजर बनाना है, तभी ना इंटीजर प्लस इंटीजर इंटीजर आएगा। इंटीजर प्लस फ्रैक्शन कभी भी इंटीजर हो सकता है क्या? नहीं। So therefore this 6 by n actually should be an integer. So what are the possible values of n? It is nothing but such a number which can divide 6. So what are the values of n which can divide 6? I think 1, I think 2 can divide, 3 can divide, 6 can divide. But here n is an integer. तो आंसर क्या होगा? 4 होगा. Can I tick 4? Anybody? I should tick 4 or none of these क्योंकि 4 केसेस आ रहे हैं. Ambalika says yes. Others, answer is 4. Devapriya, what do you say? No sir, none of these should be the answer. क्यों? क्योंकि सर यहाँ पे n का वैल्यू तो यहाँ पे 4 आया है, और बाकी जो सर आपका ये वाला जो पार्ट है 16n + 7, तो उसका भी तो कुछ n के वैल्यू पे डिपेंड करेगा कितने केसेस बनेंगे। तो 1, 2, 3 एंड 6 के 4 केसेस तो आ रहा है n का वैल्यूज, क्योंकि इंटीजर हो जाएगा। बट -1 भी तो होगा यार दीपक। n का वैल्यू अगर -1 होगा तब भी तो ये वैल्यू इंटीजर बनेगा, क्योंकि 6 को तो -1 से करोगे डिवाइड तो -6 हो ही सकता है। क्या दिक्कत है? तो 4 नहीं 8 केसेस आएंगे। यस, राइट, अंडरस्टूड। रूपांकर, समझ में आया? एक्चुअली देयर विल बी 8 केसेस, क्योंकि इंटीजर बोला है, पॉजिटिव इंटीजर नहीं बोला। तो सर अब समझ में आया जो अभी आपने बताया कि पॉजिटिव नेगेटिव का क्या गेम है, कहाँ हमें ध्यान देना है। अगर यही क्वेश्चन रहता कि n इज अ पॉजिटिव इंटीजर तो आप इसको टिक करके आते, राइट? करेक्ट दीपक? Right, okay, those who understood. एकदम आराम से लिखो, कॉपी करो, समझो, सोचो, पूछो। आगे बढ़े। Let's take one more question in the same line and understand कि भाई इंटीजर्स कितना इंपॉर्टेंट है, जो छोटी सी बात मैंने कही। Let's take the next question on the screen. How many pairs of positive integers m comma n satisfy this equation where n is an odd integer less than 60? I hope you know the meaning of odd, even, and stuffs like that. Giving you 1 minute, try it out.
Okay, your time is up. Let us understand the question. How many pairs of positive integers m, n, जैसे कि m1 होगा n2 होगा, तो ये एक पेयर कहलाएगा. इसमें 0 और -3 नहीं चलेगा, बिकॉज पॉजिटिव इंटीजर है, m और n दोनों पॉजिटिव है, 0 नहीं चलेगा. ठीक है. सो आपको कितने सारे पेयर्स अलाउड, बट n क्या है, इज एन ऑड इंटीजर लेस देन 60. सो ऑड इंटीजर लेस देन 60 और पॉजिटिव भी होना है, क्योंकि पहला कंडीशन में तो n और n पॉजिटिव है. तो व्हाट आर द पॉजिटिव इंटीजर्स व्हिच आर लेस देन 60 एंड ऑड? 1, 3, 5, 7, आई होप यू अंडरस्टैंड, 9, 11 से लेकर के लास्ट वाला आई थिंक 59 होगा. राइट नाउ, मगर आपको m और n के वैसे कितने कॉम्बिनेशंस हैं, तो सो देयर आर कंडीशंस ऑन n बट नो कंडीशंस ऑन m. तो आप क्या करो, ये दिया हुआ है, फ्रॉम हियर मेक m द सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला. मतलब कि आप लेफ्ट में m को रखो एंड राइट में 12n होगा, तो आई थिंक n माइनस एलसीएम ले लो, है ना, 12n, तो n माइनस 48 डिवाइडेड बाय 12n. इसका मतलब यहाँ m का वैल्यू हो जाएगा 12n डिवाइडेड बाय n माइनस 48. अब ध्यान से समझो, जिनका बेसिक्स क्लियर है वो अच्छे से सोच पाएंगे यहाँ पे क्या, कि m को चाहिए पॉजिटिव इंटीजर. इसका मतलब ये n पे डिपेंड करेगा. n हम 1 नहीं ले सकते क्योंकि 1 माइनस 48 नेगेटिव आ जाएगा. इसी तरीके से आई थिंक n का वैल्यू 48 तो ले ही नहीं सकते क्योंकि ऑड है n. तो आई थिंक द फर्स्ट नंबर जो n का अलाउ आप करोगे 49 अलाउ करोगे. 49 माइनस 48 1, 12 इंटू 49 आ जाएगा m एक पॉजिटिव. 49 के बाद नेक्स्ट ऑड नंबर होता है 51, 53, 55, 57, 59. 49 अलाउ करोगे. व्हाट अबाउट 51? 51 माइनस दिस 3, ऊपर 12 3 से कट जाएगा, ये इंटीजर आएगा, चलो ये भी चलेगा. 53 करेंगे तो 5, ये इंटीजर नहीं आएगा. कैसे नहीं आएगा सर? 12 माइनस 53 डिवाइडेड बाय 53 माइनस 48 5 होगा, ये कटेगा नहीं कटेगा, मतलब ये अलाउ नहीं होगा. 55 अलाउ होगा? 7, 55 नहीं होगा. 57 अलाउ होगा? नो. 12 इंटू 57 डिवाइडेड बाय 9, यस, 3 का टेबल से कट जाएगा, ये इंटीजर आ जाएगा, यानी 57 अलाउ होगा. 59 अलाउ होगा? चेक करो, नहीं होगा. सो द ओनली 3 नंबर्स आर अलाउड, 49, 51 एंड 57. Corresponding to these numbers there will be some value of m. So there will be such 3 pairs. तो चल रहा है, नहीं इसमें भी नहीं चल रहा, कनेक्टिंग हो गया. Got it? क्यों तू पहले बोल, आज भी Sorry sir, I muted you. हाँ. और What happened? Sorry sir, I by mistake I muted you. I was going to mute Ambalika, but sorry, I muted you. अच्छा अच्छा, तो you guys understood मैं कहाँ तक बोला? I don't know. Those who understood, right? Okay. Those who want me to repeat, right? Repeat. So answer is 3, right? So there will be 3 cases. कॉपी कर लो इसको. ठीक है, आगे बढ़े. All right. So as I said, when we talk about integers, there are positive integers, negative integers, non-positive, non-negative, depending on 0. Okay. Integers are also classified as, natural numbers. Please write down. They can be whole numbers. सर क्लास 5 में हमने पढ़ा था. अभी मैं जब क्वेश्चन देना शुरू करूंगा तो बहुत लोग आंसर नहीं लिखते हैं. Natural number, whole numbers, then comes prime numbers.
प्राइम, आई थिंक फिर आपने पढ़ा है कॉम्पोजिट नंबर्स। पहला क्लास में बहुत स्लो चाहता हूं कि आप एकदम हजम करो चीजों को। Let us talk about them one by one. Natural numbers. Nature में क्या है? एक sun, एक moon, 10 trees. So numbers starting from 1, 2, 3 till infinity. All these numbers are natural. ऐसे याद रखेंगे. Whole. ये सबसे पहले नेचर जब था तो इंडिया ने जीरो नहीं दिया था. जब इंडिया जीरो दे दिया तो एक नया सेट ऑफ नंबर्स आ गया, whole numbers. Right? So this is called the set of whole numbers because zero is included whole. ऐसे याद रख सकते हो. Then comes prime numbers. Then you also have odd numbers, even numbers, right? So लिख लो. You have even numbers भी बोलते हो. Then you have odd numbers. So what are even numbers? The number which is divisible by 2 is called an even number. So 2 is an even number. Minus 2 is an even number. 0 is an even number, yes or no? Right, yes or no? 0 is an even number. जल्दी जल्दी लिखो. All have to write. Okay. Now, I think very soon you're going to say sorry to yourself जब आप समझोगे कि 0 is an even number. मैं झूठ नहीं बोल रहा. डिविजिबल कर सकते हैं किसी से, उसको खुद से. नहीं, वो तो प्राइम नंबर जो खुद से किसी और से, वो तो प्राइम नंबर का डेफिनेशन है. इवन क्या है? मेरे टीचर ने बोला था कि 4 इज एन इवन नंबर. मैंने पूछा सर क्यों? उन्होंने बोला बिकॉज अगर आप 2 से डिवाइड करोगे तो कट जाएगा या तो रिमाइंडर 0 आएगा. तो उसी हिसाब से अगर 0 को 2 से डिवाइड करोगे तो 0 बार में कट जाएगा, रिमाइंडर 0 आएगा. R फॉर रिमाइंडर. Therefore 0 is an even number. Right, sorry those who have written no. बहुत पिटाओगे. सब भूल गए क्लास 4, 2, 1 का. ओके, प्लीज डोंट माइंड, मैं बस ऐसे ही मजाक कर रहा. बट होप यू अंडरस्टैंड. ठीक है. इतने सारे सॉरी ना. आई मीन एवरीबडी इज कंफ्यूज्ड अबाउट दिस जीरो. बहुत प्रॉब्लम करता है. सो लॉट ऑफ क्वेश्चंस आर फ्रेम्ड in which this basic thing is tested and you will make mistake. Ha, 0 is not an even natural number. अलग बात है. मगर मैंने बोला 0 is an even number. The moment I say number, it actually means real number. I don't mean natural number. Natural number is a specific group of numbers. Whenever I say number, number का simply meaning होता है real numbers. मतलब ऐसे number जिसमें I नहीं है. Understand? All right. So coming to odd numbers, 1, 3, 5, all these are odd numbers. Minus 7 is an odd number. Minus 9 is an odd number. Right? Yes or no? Yes or no? लिखो जल्दी. Minus 7 is an odd number. Yes. Yes, that's true. That's good. It's an odd number, but odd natural नहीं है. That's fine. 0 is an odd number. Yes or no? लिखो. हिंदी में लिखना. Yes मत लिखना. हाँ ना लिखो. हाँ या ना. Because yes 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 इतना लिख दियो आप लोग, मैं समझता नहीं कि पहले वाले का आंसर है कि अभी का आंसर है. 0 is an odd number. फटाफट लिखो.
ये तो टफ क्वेश्चन नहीं है। All right, again time has come for you to say sorry, because अगर जीरो इवन मैंने कह दिया तो फिर वो ऑड कैसे हो सकता है यार? Zero is not an odd number. Those who have said yes, right, sorry. क्योंकि जब वो इवन है तो ऑड कैसे हो सकता? नंबर या तो इवन होगा या तो ऑड होगा। एट द सेम टाइम इवन भी होगा ऑड भी होगा, ऐसा होता है क्या कभी? सर आपने तो मेरे पैर के नीचे से जमीन हटा दिया सर, इतना छोटा छोटा चीज आप। भाई मैंने जमीन हटा नहीं दिया, मैंने जमीन लगा दिया। ठीक है। चलो, आई होप यू अंडरस्टैंड। आपने शायद स्कूल्स में ये पढ़ा है, वन के बारे में पढ़ा है कि वन इज नीदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट। ओ यस सर, वन के बारे में पढ़ा है कि वन इज नीदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट। जीरो के बारे में नहीं पढ़ा। ठीक है, लिखो। सो जीरो इज एन ऑड नंबर, हटाओ, इज नॉट एन ऑड नंबर, नॉट को अंडरलाइन करो। जीरो इज नॉट एन ऑड नंबर। ठीक है, राइट नेक्स्ट दोज हु हैव कॉपीड। नोट्स बनाओ जी, these are going to be your lifeline for the next 1 or 2 years till you guys have cleared aptitude rounds of other exams successfully. Chalo, coming to prime numbers, a very very important topic. Tanmatra, 5 is a prime number. Why? Because this number can be divisible by 1 and the number itself. So I'm not making you write the definition, very basic. A number which is divisible by 1 and the number itself. Or a prime number has two factors. Has exactly two factors. Right? So 17 is a prime number because it is divisible by 1 as well as 17 only. Right? So if I ask you from 1 to 50, how many prime numbers are there? From 1 to 100, how many prime numbers are there? Write down. Number of prime numbers. Don't tell me the list. Tell me the number of prime numbers. Number of prime numbers. 1 से 50 के बीच में, 1 to 100 के बीच में. So prime numbers will actually be something like this, right? 2, 3, 5, 7, 11, 13, right? So something like that. So you have 15 prime numbers, and from 1 to 100 you will have 25 prime numbers. Okay, note kar lo. Note it. Number of prime numbers will be 15 और 15 और 25 होता है. ठीक है, लिखो noted. I go to the next page now. आज का क्लास आपको बहुत आसान, रिलैक्स्ड लगेगा because all बच्चा kind of things we are studying. चलो, if you see the prime numbers 2, 3, 5, 7, 11, 13 like this, this is a special prime number. This is called even prime. Only number which is even is prime, and prime is 2. Apart from that, all of these are odd primes, right? A very special category of prime number is 3, 5 and 7. Please write 3, 5 and 7 एक स्पेशल कैटेगरी ऑफ प्राइम नंबर है जिसका डिफरेंस 2 होता है, कंसेक्यूटिव. ये क्या है जी? ये कंसेक्यूटिव है एंड इनका डिफरेंस ऑफ 2 होता है. और कहीं भी पूरे सेट में कहीं भी ये ऐसा प्रॉपर्टी नहीं मिलेगा.
तो अगर आपको बोलता है लैंग्वेज 3 consecutive prime numbers having a difference of 2, तो आप समझ जाओ वो 3, 5 और 7 के बारे में कहा जा रहा है। सो ये येलो कलर में मैं रिपीट कर रहा हूं, 3, 5, 7 दे आर द स्पेशल प्राइम सेट। ट्रिपल 3 का एक ऐसा जोड़ा है जहां डिफरेंस 2 का होता है, कहीं भी नहीं होता। जैसे कि 11 और 13 उसके बाद 15 होता है क्या? 15 तो प्राइम नहीं होता है। तो आप कोई सा भी कॉम्बिनेशन उठा लो, जैसे कि 17, 19, 21, 21 तो प्राइम नहीं है, तो ऐसा कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं आएगा। स्टार देकर के लिखो। हाँ जी, जैसे कि हम लोग बोले थे, आप जब बोले थे 0, जैसे कि हम लोग वो आप बोले थे ना इवन ना ऑड, जैसे वो इवन था, हम लोग वो ऑड नहीं हो सकता, तो यहाँ पर 2 तो आपका इवन नंबर, तब यहाँ पर प्राइम नंबर भी हो सकता है हाँ ऐसे। वो कोई दिक्कत नहीं है। इवन और पूरे रियल पूरे नेचुरल नंबर्स में, सॉरी पूरे जो आपका क्या बोलते हैं इंटीजर्स की बात करें, इंटीजर पूरा इंटीजर 2 ही ग्रुप में क्लासिफाई कर सकते हो आप, इवन सॉरी जस्ट पूरा जो इंटीजर है वो इवन होगा और ऑड होगा। मगर ऐसा नहीं है कि इवन, अब वो प्राइम अलग क्लासिफिकेशन है। प्राइम नंबर जब हम कहते हैं तो एक स्पेशल प्रॉपर्टी है कि इसका 2 ही फैक्टर होता है। अब 2 कहता है कि मेरे पास भी तो 1 है और 2 ही है, तो ये प्राइम की कैटेगरी में आ जाता है। और चूंकि 2 इवन भी है तो उसको हम कहते हैं इवन प्राइम। तो अगर हम आपसे पूछे कि इवन प्राइम नंबर कौन सा है, तो आप बोलोगे 2। मगर ऑड इवन के केस में 2 अलग अलग ब्रॉड क्लासिफिकेशन है। जो नंबर इवन हो गया वो कभी भी ऑड नहीं हो सकता, जो ऑड हो गया वो कभी भी इवन नहीं कहला सकता, क्योंकि जो 2 से डिविजिबल है वो आप कैसे कहोगे 2 से डिविजिबल नहीं है? कॉम्प्लीमेंट होता है ना। ऑड का डेफिनेशन क्या होता है? अ नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड ऑड। इवन का डेफिनेशन क्या होता है? नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2। जब आप यहाँ कह रहे हो कि 2 इज डिविजिबल बाय 2, तो फिर आप दोबारा कैसे कह सकते हो कि 2 इज सॉरी 0 इज डिविजिबल बाय 2? तो आप दोबारा कैसे कह सकते हो कि 0 इज नॉट डिविजिबल बाय 2? अपने ही बातों को कॉन्ट्रडिक्ट आप नहीं कर सकते, करेक्ट? इसी कारण हमने कहा 0 एक इवन नंबर है, इसी कारण आप ऑड में क्लासिफाई नहीं कर सकते। बट व्हेन आई टॉक अबाउट 2, it can be classified as prime as well as even, therefore it is called even prime. Correct Tanmatra? Justified? Wonderful. So I hope you understand. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया। उसके बाद देखो एक और प्रॉपर्टी आप ध्यान रखना, 2, 3, 5, 7, 11, 13 ऐसे करके जो प्राइम नंबर्स होते हैं, अगर आप 5 के बाद के प्राइम नंबर्स देखो, अगर आप 5 के बाद के प्राइम नंबर्स देखो दीपक, तो जितने भी प्राइम नंबर्स हैं उसको अगर आप 6 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आपका या तो 1 आएगा या तो 5 आएगा। सर नहीं समझ में आया, नोट लिखो। फॉर अ प्राइम नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 7, greater than 5, for p greater than 5, p when divided by 6 remainder is either 1 or 5। मतलब कि इस p को हम 6k प्लस माइनस 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे कि मान लो 13, इसको आप लिख सकते हो 6 दूनी 12 प्लस 1। जैसे कि 17, उसको आप लिख सकते हो 6 तिया 18 माइनस 1। सो एनी प्राइम नंबर ग्रेटर देन 5 कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 6k प्लस माइनस 1। नोट में लिखो, क्या लिखोगे? एनी प्राइम नंबर ग्रेटर देन 5 कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 6k प्लस माइनस 1। इस तरीके के छोटे छोटे इतने सारे बातें हैं नंबर्स के टॉपिक में कि एक छोटा कंसेप्ट अगर आपका क्लियर नहीं है
तो आपको क्वेश्चन बनाने में दिक्कत आ सकती है। डन। लेट्स टेक वन क्वेश्चन। थोड़ा हम लोग स्लो चल रहे हैं आज, नॉट अ प्रॉब्लम। चलो, if sum of a given set of 4 prime number is 63, then one of the prime number must be, your time starts now, 30 seconds. All right, your time is up. शुभांगिनी इधर देखो। Sum of a given set of 4 prime numbers, तो 4 prime number है P1, P2, इसका sum P3 and P4, इसका sum है 63. Then one of the prime numbers must be. अच्छा, एक बात समझो यार कि this 63 तो एक odd number है ना जी। तो आपको पता है प्राइम नंबर्स का सेट में सिर्फ एक ही इवन होता है, बाकी सब ऑड होते हैं। तो इस केस में क्या सब ऑड हो सकता है? ऑड, सारे ऑड होंगे तो क्या सम ऑड आएगा? ऑड प्लस ऑड इवन होता है, एंड ऑड प्लस ऑड फिर इवन, एंड इवन प्लस इवन फिर इवन होता है। इसका मतलब कि सारे नंबर्स को आप ऑड नंबर्स नहीं ले सकते। इसका मतलब इन 4 नंबर्स में से एक को तो आपको इवन रखना ही पड़ेगा, बाकी सारे को ऑड रख दो, क्योंकि ये इवन रहेगा तो ऑड ऑड ऑड, सम ऑफ 3 ऑड नंबर होता है ऑड, एंड ऑड प्लस इवन होता है ऑड, तो ये चलेगा। सो अगर एक नंबर को इवन हम रखेंगे तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा। Then one of the numbers must be 2. Right, fine. Right, fine. If you have understood. Jaldi likho. Another 4 minutes. 1 or 2 more questions we can do. Can you repeat? Yes, I can repeat. Tanmatra, sum of 4 odd numbers can never be odd. Sum of 4 odd numbers will definitely be even. देखो कैसे, जैसे कि 2 + 4 + 6 + 8, तो आपका ये इवन ही आएगा, 10 10 20 आएगा, है ना? क्योंकि ऑड प्लस ऑड इवन होता है, ऑड प्लस ऑड इवन, इवन प्लस इवन फिर इवन ही होता है। सो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि हम सारे नंबर्स को ऑड रख लें, तो वन नंबर हैज टू बी इवन, क्योंकि अगर एक इवन होगा तो बाकी 3 को हम ऑड रखेंगे। व्हाट इज द सम ऑफ 3 ऑड नंबर? 1 + 3 + 5, 5 3 8 1 9, ऑड। ये अगला कल हम लोग एक टॉपिक भी करने वाले हैं, इवन ऑड पर बहुत सारे क्वेश्चंस भी हैं कि सम ऑफ 3 ऑड नंबर्स क्या होता है, सम ऑफ 20 ऑड नंबर्स क्या होता है, 29 ऑड नंबर्स क्या होता है, एंड क्वेश्चंस, hell lot of questions are there in the market. We have to do those, but as of now I think this much basic you know. 3 नंबर का सम होगा ऑड, and even plus odd will be odd. Yes, that is possible. So that this odd case is only possible when I keep one of the numbers to be even. And who is that even prime number? That's 2. Right, okay, Tanmatra. Who is that even prime number? And that's 2. I'm waiting for you. Is that fine, Tanmatra? Wonderful. People, this can be the last question of the day, and then we will finish the class. Giving you 1 minute, 2 minutes are left, 1 minute for you and the other for me.
Okay, your time is up. Let us do this question. रात भी हो गया है, डिनर का भी टाइम हो गया है ना. चलो. X denotes set of all prime. Please allow me to take this question to the next page because I have already written one question. If X denotes set of all prime numbers less than 50. चलो ठीक है. X क्या है? Set of all. How many zero does the product of the elements of X? मतलब कि सारे numbers का product, मतलब 2 into 3 into 5 into 7 into 11 into 13 ऐसे करके डॉट 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 लास्ट नंबर कौन सा आएगा जी? 47. 49 तो प्राइम नहीं होता है ना. तो इतना बड़ा आप मल्टीप्लाई करोगे तो पूछ रहा है कि हाउ मेनी जीरोस डज द प्रोडक्ट, मतलब इसका जो आंसर होगा 1 2 3 4 बहुत सारा डिजिट का होगा, इसके पास कितने जीरोस आएंगे एंड विथ, मतलब लास्ट में जीरो चाहिए. अच्छा, जीरो का मतलब क्या होता है? 10, मतलब जैसे कि 420, इसका मतलब क्या? 42 into 10. so, एक जीरो का मतलब होता है 10. अगर हम कहते हैं 2 जीरो है लास्ट में, इसका मतलब क्या होता है? इस नंबर के पास है 100. 3 जीरो है, इसका मतलब इस नंबर के पास 1000 है. समझ में आ रहा है? सो 1 जीरो corresponds to 110 and 110 actually means a product of 2 and 5. प्राइम फैक्टराइज अगर आप करो, 10 का मतलब होता है 2 और 5. तो जितना सारा पेयर बनेगा 2,5 का, उतना सारा जीरो आएगा. सो नोट में क्या लिखो? नंबर ऑफ जीरोस क्या होता है? इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ 2 and 5, 2,5. अगर इसमें अगर आप ध्यान से देखो तो 2 तो बेचारा अकेला 2 है, यानी जीरो आने के लिए 2 तो चाहिए और एक 5 भी चाहिए. 5 और 25 तो आएगा नहीं, तो एक ही 2 है, एक ही 5 है, तो it will give birth to only 1 zero. My answer is 1. I have taken 2 minutes extra. Right, understood, fine, good night. जल्दी. And you can copy this question, screenshot भी आप ले सकते हो. इस क्वेश्चन को कॉपी कर लो. इस क्वेश्चन को कॉपी करो, or you can take the screenshot in Skype. Somebody can take the screenshot and that can be taken care. Homework जैसा करना. I think we have the next class tomorrow itself. ठीक है? The screenshot is available in the Skype chat box. Try this question. Till then, have a sound sleep. Good night.